Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn in standard 6 mathematics subject on our today's topic is basic concept in geometry, यानी इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात. ये हमारा आज का टॉपिक है. तो चलिए आइए बात करते हैं बुनियादी तस्वुरात के बारे में. बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में क्या है उसके बारे में. और हम जानते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर से हैं जैसे आप जानते हैं ना. You know very well about angles and many other topic of geometry which you already learned in your previous classes. So what you're looking on your screen, so there is a design of rangoli. So what you're looking, there is so many points, है ना, बहुत सारे नुक्ते हैं और उन नुक्तों को मिलाकर डिज़ाइन तैयार की जाती है ना, और फिर उसके बाद में उसमें रंग भरा जाता है. इस तरह से आप हमेशा देखते हैं. अक्सर से हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर अलग अलग जब आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये भी कॉम्पिटिशन होता है रंगोली प्रिपरेशन का, और उसमें आप इस तरह के पॉइंट्स बनाते हैं, है ना, नुक्ते बनाते हैं और उससे अलग अलग डिज़ाइन आप तैयार करते हैं. सो इसके अलावा भी हम देखते हैं यहाँ पर कि देयर इज सम आर्टिकल्स और some things that you are using in your daily student's life. So here is one pen, very important. This one is a pencil, and you know that there is some dot made by this pencil, made by this pen, you know. So these all are points, right? So points यानी कि नुक्ता. किसे कहते हैं हम नुक्ता या किसे कहते हैं हम पॉइंट? तो पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट्स किसे कहते हैं. सबसे पहले so some definition you must supposed to learn, and here is some information which you are looking on your screen. So a tiny dot made by finely pointed instrument on a sheet of paper conveys the idea of a point. The dot is the symbol for a point, as you're supposed to see on your screen. This one is a point. Which point? This one. What is the name for this point? Has another point, and what is the name of this point? You will also see this point. What is the point? What is the name for this point? तो हम देखते हैं बच्चों कि नुक्ते का जो तस्वुर है, नुक्ते के बारे में जब हम कोई मालूमात लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि नुक्ता कागज़ के वरक पर किसी बारीक नोकदार आले से बनाए हुए नन्हे से निशान जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो इस तरह से नुक्ते का तस्वुर हासिल होता है. और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक नुक्ते की अलामत है ना. इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर.
تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی پینسل ہم جب لیتے ہیں مارک کرتے ہیں, پین لیتے ہیں اسے مارک کرتے ہیں ہم, تو ایک چھوٹا سا نقطہ تیار ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا پوائنٹ تیار ہوتا ہے, اور وہی پوائنٹ جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ کہلاتا ہے یا پوائنٹ کہلاتا ہے نا. اور یو مسٹ نو اباؤٹ دس ون کہ capital letters of English alphabets are used to name these points. As you know that we are already given here the point R, the point P, the point T. These are the points, right? So points R, point P and point T are shown in the figure. The point has a position but no magnitude. So you must understand, I think so. And now we will move for the line segment. Line segment کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو ہم قطع خط کہتے ہیں, رائٹ. تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. So here is a point. This one is another point. And when if we joined two distinct points A and B by using ruler, when we get a line segment AB, A and B. So line segment AB is written as seg AB or seg BA in short. A line segment has a definite length. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں ایک بات ضرور سے کہ قطع خط میں اگر ناپٹی کا استعمال کر کے اس طرح سے ہم دو متفرق نقاط جیسے A اور یہ B ہے اس کو ملائے تو ہمیں قطع خط AB یہاں پر حاصل ہوتا ہے نا. تو یہ قطع خط AB کو ہم مختصراً جو لکھتے ہیں وہ قطع AB یا پھر قطع BA اس طرح سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں اسے. اس میں ہمیں مزید جو ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ قطع خط کی مخصوص لمبائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور نقاط A B کو قطع A B کے سرے یا اختتامی نقطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے اسے. So we'll move for the next one. Next one ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے, کیا ٹاپک ہے ہمارا نیکسٹ ون؟ وہ ہے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے خط, ہے نا, جس سے ہم انگلش میں لائن کہتے ہیں, ہے نا. کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ لائن. سو لائن ہم ہمیشہ کھینچتے ہیں, ہے نا. سو ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے یہاں پر لائن کے تعلق سے کہ ایسی لکیر جسے دونوں جانب لامحدود بڑھایا جا سکتا ہے, ایسی شکل کو ہم عام طور پر خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں. سو یہاں پر دیکھیں ہم پوائنٹ A اور یہ پوائنٹ B ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قطع خط اے بی کو دونوں جانب اگر ہم کہیں تک بڑھائیں تو ہمیں ایک خط حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک خط حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. if we extend a line segment, a straight line, the line L is shown as
in mathematics, a line means straight line, as you're looking on your screen. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर कतई खत जो तैयार किया था उसे भी आपने देखा है ना, और आप खत को भी आप देख रहे हैं ना. सो यहाँ पर हमें देखना है, मज़ीद मुशाहिदा करना है. ये नुक्ता हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है, और नुक्ते से हमने एक ख़त यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है. तो हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसे आमतौर पर हम तीर के निशान से भी ज़ाहिर करते हैं. इससे हमें समझ में आता है कि ख़त को हर दो जानिब जो है तो लामहदूद तौर पर बढ़ाया जा सकता है. इसे तीर के निशान से भी ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है. ख़त की कोई मखसूस लंबाई नहीं होती है, और हमें ये बात मज़ीद यहाँ पर याद रखना है कि ख़त को अंग्रेज़ी के एक छोटे से हर्फ या ख़त पर वाक़े कोई दो नुकात की मदद से जो है तो ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है. याद रखिए, जैसे यहाँ पर इस शक्ल को हम जो है तो एल से ज़ाहिर कर रहे हैं ना, एल से दिखाया गया है, तो इसका नाम जो है तो हम क्या रखेंगे, ख़त पी क्यू या ख़त क्यू पी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है. सो दिस वन इज अ लाइन क्यू पी और पी क्यू are the 2 points on the line L, like this one. So a line extend indefinitely on both the side. To show this, we use arrows hand at both ends of this figure. So here you must understand about line, ठीक है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियाजी में जो है तो ख़त का मतलब मुस्तकीम ख़त होता है. यहाँ पर हम लकीर जो देखे हैं, यहाँ पर हमने कौन सी है लकीर, ए से बी तक ही है, और ये वो लकीर है, इस नए ख़त का टुकड़ा है, यानी कि ये कतई ख़त है, ठीक है. याद रखिए इसे. सो इस तरह से हम लाइन के बारे में बात करते हैं, और लाइन के बारे में हमें ये बात यहाँ पर मालूम हो गई है, ठीक है. सो यहाँ पर याद रखना है, द लाइन L is shown in the figure. It is also named as line PQ or line QP, where PQ are 2 points on the line L, ठीक है. यहाँ पे इसे याद रखना है. सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट है हमारा यहाँ पर रे, जिसे हम शुआ कहते हैं. क्या कहते हैं, शुआ. सो रेस के बारे में यहाँ पर बात करने से पहले हम ज़रूर चाहेंगे आपको कि बताएं कि शुआ जो है तो हम अक्सर से कहाँ पढ़ते हैं. साइंस में आपने शुआ पढ़ा होगा ज़रूर से, है ना. तो हम देखते हैं कि शुआ जो है तो ख़त का हिस्सा होती है. जिस तरह से हम देखते हैं और भी दूसरे हमने ख़त देखा है, कतई ख़त देखा है, तो उसी तरह से शुआ भी जो है तो ख़त का हिस्सा है. और शुआ एक नुक्ते से शुरू होती है, ठीक है, और दूसरी जानिब लामुतनाई तौर पर बढ़ती है, ठीक है. याद रखिए इसे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है तो शुआ के नुक्ता आगाज को हम मब्दा कहते हैं, या इख्तितामी नुक्ता भी इसे कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर याद रखिए आप. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड रे. Ray is a part of line. Ray starts at the point, goes on indefinitely
in one direction, right? This is the one direction. Starting points of ray is called the origin or end point. So in the figure, P is the origin of PQ, right? यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस शक्ल में ये जो P शुआ है ये PQ का मबदा है, ठीक है, और Q की सिमत में लामतनाही तौर पर बढ़ाई जा सकती है। इसे जाहिर करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि शुआ PQ और शुआ QP ये दो मुख्तलिफ शुआएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ज़रूर से बच्चों आप इसे याद रखेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आज के सेशन में बच्चों हमने ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको 4 चीज़ें सिखाई है। सबसे पहले क़तए ख़त, उसके बाद में हमने यहाँ पर शुआ के बारे में बात की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि लाइन सेगमेंट रे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों ये जो भी आपको मालूमात दी गई है आज के सेशन में, आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज़। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।